بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے کی جانب اہم اقدام۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے گزری تھانے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا۔ سی پی کے کی جانب سے گزری تھانے کی حدود میں 148 جدید کیمرے لگائے گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں انوشا جعفر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بے قابو ہوتے کرمنلز کو قابو کیسے کریں، پولیس کا بڑا پلان، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے گزری تھانے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا۔ سی پی کے کی جانب سے گزری تھانے کی حدود میں جدید 148 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا، مجھے نام سی پی کے بہت اچھا لگا۔ اگر کمیونٹی ساتھ ہے، پولیس ساتھ ہے، کراچی ساتھ ہے تو سب کام ممکن ہے۔ مجھے نام سی پی کے بڑا اچھا لگا، کمیونٹی، پولیس، کراچی۔ تو یعنی کہ کمیونٹی اگر ساتھ ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، پولیس اگر ساتھ ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، اور کراچی اگر ساتھ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کراچی چلتا ہے، پاکستان چلتا ہے۔ تو ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کمبینیشن ہے، نام بڑا اچھا چوز کیا آپ نے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا وے فارورڈ۔ کراچی پولیس چیف خادم رند نے کہا، کراچی پولیس کی نفری بہت کم ہے، کراچی شہر میں نفری کی ضرورت ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جس تھانے کی حدود میں بنائے گئے ہیں وہاں اسٹریٹ کرائم میں واقعی کم ہوا ہے۔ اس وقت کراچی شہر میں 4,500 لوگوں پہ ایک سپاہی ہے، 10 ٹائمز مطلب زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ جہاں جہاں پہ یہ پروجیکٹس اسٹارٹ ہوئے ہیں وہاں پہ کرائم ریٹ جو ہے وہ انبلیویبلی کم ہوا ہے اور کنٹرول ہوا ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے ساتھ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا، ایس ایس پی ساؤتھ ساجد سدوزئی بھی موجود تھے۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ ملیر سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، گٹکا بنانے والی 2 فیکٹریوں پر چھاپہ مارا گیا، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 400 کلو چھالیاں اور 40 کلو گٹکا بھی برآمد کر لیا گیا۔ سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیں۔ ایس ایچ او ملیر سٹی کے مطابق ملزمان خفیہ طریقے سے فیکٹری رہائشی علاقے میں چلا رہے تھے۔ انٹیلیجنس معلومات پر کارروائی کی گئی۔ چھاپے کے دوران 400 کلو سے زائد چھالیاں برآمد کی گئی، جبکہ گرفتار ملزم اسلام الدین کے قبضے سے 40 کلو سے زائد گٹکا بھی برآمد کیا گیا۔ مذکورہ فیکٹری سے 3 پیکنگ مشینز، 2 مکسچر مشین، 3 سلنڈرز بھی برآمد ہوئے۔ تاہم گرفتار دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدر سیکیورٹی کا کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں کراچی میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران سمیت دیگر نے شرکت کی، جس میں یوم علی علیہ السلام، ایسٹر، رمضان کا آخری عشرہ، چاند رات اور عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی سیکیورٹی لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا اور اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کی توثیق کی گئی۔ کانفرنس میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا گیا، جبکہ جرائم پیشہ افراد کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتاری کے لیے بھی لائحہ عمل بنایا گیا۔ جامعہ کراچی میں ایچ ای سی سندھ ایڈیشنس اسکالرشپ دی گئی۔ 63 طلبہ طالبات میں 1,44,90,000 کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ایمہ خان کی اس رپورٹ میں۔ تعلیمی میدان میں جامعہ کراچی طلبہ کو سہولیات فراہم کرنے میں پیش جامعہ کراچی میں ایچ ایس سی سندھ اسکالرشپ چیک تقسیم کیے گئے۔ مجموعی طور پر 63 طلبہ و طالبات میں 1,44,90,000 روپے کے چیکس دیے گئے۔ کلیہ علوم کے 35 طلبہ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ چیک تفویض کیے گئے۔ کلیہ معروف اسلامیہ کے 7 طلبہ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی اور کلیہ نظامیات و انتظامی علوم کے 3 طلبہ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ چیک تفویض کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جامعہ کراچی کے وائس چانسلر خالد عراقی کا کہنا تھا کہ یہ بہت خوشی کا موقع ہے۔ تمام طلبہ و طالبات کو کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بات پہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اسپینڈنگ کر رہے ہیں، تو وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے، مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ ہے۔ تو اس کو خرچے کے طور پہ نہ دیکھیں، اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھیں
یہ لوگ آگے چل کے اس ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تقریب میں کلیہ فنون و سماجی علوم کے 13 طلباء کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپ چیک تقویض کیے گئے، جبکہ کلیہ علم الداویہ کے 5 طلباء کو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے چیک دیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یقین رکھتا ہوں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ضرور دیں، بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں افواہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر نے ڈیفنس پنجاب چورنگی کا دورہ کیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی ڈیفنس پنجاب چورنگی پر واقع یوٹیلیٹی اسٹور آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر یقین رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو ٹارگٹ سبسڈی پر اعتراض نہیں ہے۔ میں تو بلیو ہی یہ کرتا ہوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تو اس کو بزنس کے سلسلے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ آپ نے اس کو ایک اور نظریے سے بات کی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہ صرف گورنمنٹ نہ کرے۔ اچھا ہے 12.5 بلین ہو گیا ہے، لیکن آئی ٹیل یو اس نے اچھے لوگ ہیں یہاں کراچی میں کہ وہ ضرور دے ول اسٹیپ اپ۔ آپ اس کو ذرا، چونکہ ہم آئی ایم ایف کو بڑا لوزلی استعمال کرتے ہیں، ذرا آرام سے ان کو دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز آر اوکے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں افواہ کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ابھی میرے ٹیبل پہ ایسی کوئی بات نہیں آئی، تو چونکہ میرے پاس اس وقت نہیں آئی، نو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ جی کیا پرسپیکٹیو ہے۔ اگر کوئی چیز کانکریٹ ہو، یہ تو اسپیکولیشن ہے نا، اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کے جنرل مینیجر سردار احمد نے یوٹیلیٹی اسٹورز پر غیر معیاری اشیاء کی فراہمی کے تاثر کو غلط قرار دے دیا اور بتایا کہ پہلے اشیاء کی پریکیورمنٹ اور اس کے بعد کے ٹیسٹ کے لیے بھیجی جاتی ہے، جس کے بعد یوٹیلیٹی اسٹور پر فراہم کی جاتی ہے۔ وہ چیک کروا کے تو اس کے بعد جو ہم پرکیور کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے لے لیا اور ڈائریکٹلی ہم نے اسٹوروں پہ سپلائی کر دی۔ جو ہم پرکیور کرتے ہیں اس کی پہلے جو ہے لیبارٹری سے ٹیسٹنگ ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ریجنس میں جاتا ہے اور تھرو ویئر ہاؤسز ہم جو ہے سپلائی کرتے ہیں۔ آپ میری اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دالیں بھی پڑی ہوئی ہیں، بیسن پڑا ہوا ہے، وائٹ گرام پڑا ہوا ہے، رائس پڑا ہوا ہے، آپ چیک کر لیں۔ ہر چیز جو بھی آپ سے لے کے جانا چاہتا ہے وہ لے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے اس ماہ رمضان میں اشیاء خوردنوش پر 12.5 ارب کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرامین شازب حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن گلبرگ ڈسٹرکٹ سینٹرل احسان ظفر نے مختلف بازاروں میں کارروائی کی اور منافع خوروں پر بھاری جرمانے کیے، دکانیں سیل کر دیں، ایک دکاندار گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن گلبرگ احسان ظفر پرائز چیکنگ کے لیے کریم آباد پہنچے تو تجاوزات کے باعث ٹریفک جام میں پھنس گئے اور پھر شروع ہوئی انسداد تجاوزات کی کارروائی۔ تجاوزات ہٹیں اور گرام فروشوں پر جرمانے ہوئے تو شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ جس جگہ جاتے ہیں شاید عام ریٹ سے زیادہ ریٹ ہوتا ہے، اور اگر کاش ہمارے جس طرح کمشنر صاحب کر رہے ہیں، اللہ کرے کچھ اور حضرات بھی کریں تو امید ہے کہ کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا۔ کارپوریٹ یہاں پر پولیس والے ہونے چاہیے، کوئی بھی ہو کھڑا رہے یہاں پر، آپ کا کوئی بندہ ہوا کھڑا رہے بس۔ کریم آباد، حسین آباد، عزیز آباد اور واٹر پمپ پر پرائز چیکنگ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ نے 4 دکانیں سیل کر کے مجموعی طور پر 35,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا، جبکہ ایک دکاندار کو کار سرکاری مداخلت پر گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہاں پہ کیونکہ کمپلینٹس کافی زیادہ آئی ہوئی تھیں کہ ایمبولینسز وغیرہ یہاں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کریم آباد انڈر پاس ابھی فی الحال انڈر کنسٹرکشن ہے، تو اس لیے جو النجیبی والی سائڈ پہ ٹریفک جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کی گئی ہے۔ تو اس جگہ پہ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے، دکانداروں نے باہر اپنا سامان رکھا ہوا تھا، تو آج ہم نے کافی دکانوں کو سیل کیا ہے۔ اس کے علاوہ پرائز چیکنگ کی ایکٹیویٹی بھی وہاں پہ کی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بیچ میں ایک جو دکاندار تھے انہوں نے رجسٹ کیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ماہ سیام میں تواتر کے ساتھ ہونے والی پرائز چیکنگ کے نتیجے میں مکمل نہ صحیح مگر عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ لانڈھی ٹاؤن کے میونسپل کمشنر سمیت کئی محکموں کے افسران نے صوبائی وزیر بلدیات کے پہلے حکم نامے کی ہی حکم عدولی کر دی۔ افسران کی دفاتر سے غیر حاضری معمول بنی ہوئی ہے۔ دیگر ٹاؤنز کی طرح لانڈھی ٹاؤن کی عمارت بھی دفتری اوقات کار کے دوران بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ خالی کمروں میں اے سی اور پنکھے بھی چلتے دکھائی دیے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔
फ्राइडे या हॉलीडे, लांडी टाउन के दफातर को देखें तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लांडी टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत दर्जन भर दफातर जुम्मे के रोज किसी भूत बंगले का मंजर पेश करते हैं। खाली दफातर में एयर कंडीशनर्स और पंखे भी चले दिखाई दिए, जबकि बेशतर दफातर के तो ताले ही ना खुल सके। अफसरान की दफातर से गैर हाजिरी मामूल बन चुकी है। फराइज से गफलत और नौकरी से अदम दिलचस्पी आवाम के लिए सख्त मुश्किलात का सबब बन रही है। सूरत हाल का वाकई ये बात है कि यहाँ कोई भी अफसर जो है टाइम पे अपने नहीं पहुँच पा रहा, हत्या कि हमें यहाँ अपने जो भी काम पर्सनल काम है वो उनके लिए घंटों अफसरान का इंतजार करना पड़ता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अपने पहले हुक्मनामे में ही अफसरान और मुलाजमीन को वक्त की पाबंदी और बायोमेट्रिक हाजिरी का हुक्म दिया था, मगर इनके हुक्म पर लांडी टाउन समेत दीगर बल्दियाती इदारों में किसी किस्म का अमल होता दिखाई नहीं देता। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई के बायस शहरी ईद की खरीदारी में मोहतात हो गए। मदीना सिटी मॉल में कारोबार सुस्त रवि का शिकार। ताजर फयाज मेमन का कहना है महंगाई के बायस कारोबार मुतासिर है, जो चीज़ 1000 की थी वो 1500 की हो गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। ईद का सीजन लेकिन मार्केटों में गेमा गेमी ना होने के बराबर। सदर में वाक़िए मदीना सिटी मॉल के ताजिर कारोबार ना होने पर परेशान हो गए। सदर फयाज मेमन का कहना है गैस महंगी होने से गारमेंट्स की कीमतों में इजाफा हो गया। 1000 रुपए वाला सूट 1500 रुपए का हो गया। कारोबार कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहात है। गैस महंगी होने के चक्कर में जो है गारमेंट्स आपका कपड़ा महंगा हुआ। कपड़ा जो महंगा हुआ उसकी वजह से ज़्यादातर रिटेलर है, उसने कमाना वही। अगर पिछले साल देखा जाए जो चीज़ 1000 रुपए की थी आज वो 1500 रुपए की, क्योंकि रिटेलर को 1200 में जब आ रही है तो जाहिर सी बात है 200-300 वो भी कमाएगा। ताजिर का कहना था कि पूरा दिन ग्राहक के इंतजार में बैठे रहते हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। स्टॉक उठाया हम लोगों ने, माल उठाया, खरीदारों के लिए उठाया ना यार, ईद के लिए उठाया। लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, हम तो वेट ही कर रहे हैं, अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सबके कारोबार में रिस्क में बरकत अता फरमाए। ताजिरों का कहना है महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई, जिसके बाइस शहरी ईद की खरीदारी में मोहतात हो गए। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। IMF के साथ मुआहदे के समरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। KLC 100 इंडेक्स 67,307 की सतह पर देखा गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बना नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 67,307 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। सरमायाकारों ने IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात और PIA की निजकारी के फैसले को मुस्बत अंदाज में लेते हुए मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं। पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी और अब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी सज़म का इज़हार किया है कि जो पीछे काम हुआ है उसको वो कैरी ऑन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीछे जो काम हुआ था उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था। बिलखुसूस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इनफ्लो काफ़ी आया था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल भी हो गई, मार्केट बेहतर भी हो गई। क्योंकि आज वीकेंड भी है और रोल ओवर भी है तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट डिप है। हो सकता है एंड पे शायद प्लस हो जाए, लेकिन ये कि छोटे इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी होती है। जब मार्केट थोड़ी नीचे होती है तो शेयर बाइंग करने के लिए मौका मिल जाता है लोगों को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग के अमल के बाइस कारोबार का इख्तिताम मनफी रुझान पर हुआ। 100 इंडेक्स 137 पॉइंट्स और 0.20% कमी से 67,005 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 67,307 और कम सतह 66,822 रही। 9 अरब 88 करोड़ रुपए मालियत के 31.27 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मजमूई तौर पर 340 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 134 कंपनियों के शेयर्स में तेजी जबकि 188 शेयर्स की कीमत में कमी हुई। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने PIA की निजकारी जून में मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि माली साल के अख्ताम तक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। FBR में डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। FBR को डिजिटलाइज करने के लिए 8 अप्रैल को टेंडर होगा। तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने खसारे का शिकार इदारों की निजकारी पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर खजाना ने बड़ी खबर सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा कि महीने के आखिर में IMF मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं
शुरू कर दिया है. That is the important part, right? हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का. वफाकी वजीर ने बताया कि FBR में डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। आइंदा माह के पहले हफ्ते में टेंडर होने जा रहे हैं, जिसके बाद एक कंसल्टेंट मुकर्रर किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं. 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें. उसका टाइम फ्रेम क्या है? इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल वी विल बी अपॉइंटिंग दैट कंसल्टेंट एंड अनाउंसिंग दैट कंसल्टेंट. वफाकी वजीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि PIA की निजकारी जून में मुकम्मल कर लेंगे। PIA आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, दीज आर टू विच आर इन नाउ इन एडवांस स्टेजेस, और जैसे मैंने जिक्र किया वो हम हर दिन और हर वीक इसको मॉनिटर कर रहे हैं टिल वी गेट इनटू द बिडिंग प्रोसेस, ताकि इंशाल्लाह बाय जून टाइम फ्रेम हम इनको वी कैन टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन. वफाकी वजीर ने CPEC फेज 2 पर फौरी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा तवानाई के शोबे में नुकसानात पर काबू पाने की जरूरत है। नुकसानात को नहीं रोकेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। रमजान में महंगाई बढ़ी, मगर मजमूई तौर पर महंगाई की शरह कम हो रही है। कैमरामैन शाहजेब के साथ वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। कांटे का भी IMF की नई शर्त पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहिन सलमान ने कहा है कि IMF ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 18% सेल टैक्स आयद करने की शर्त रखी है। इस पर 50 रुपए फी लीटर कीमत में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत सरकारी अफसरान की फ्री बिजली और पेट्रोल बंद करे, पता चल जाएगा क्या कीमत है और क्या परेशानी है। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनअतकार बिजली गैस की बुलंद कीमत के साथ मजीद टैक्स के बोझ से परेशान। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहिन सलमान ने कहा है कि फैसले हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। दुनिया भर के माहिरीन ने IMF के प्रोग्राम को मईशत के लिए तबाही करार दिया है। पाकिस्तानी अवाम का फैसला IMF नहीं है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट प्रूफ कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास सामने प्रूफ्स हैं कि IMF के प्रोग्राम्स ने जितनी तबाही फैलाई है मुल्कों में उतनी किसी ने नहीं फैलाई। काटी साबिक सीनियर नायब सदर ने कहा कि हुकूमत एक बार फिर से IMF का नया प्रोग्राम लेने जा रही है, जबकि IMF ने पेट्रोलियम मसूनात पर 18% सेल टैक्स आयद करने की शर्त लगाई है। अगर फ्यूल पर 18% सेल टैक्स लगा तो 50 रुपए फी लीटर का इजाफा हो जाएगा। हुकूमत सरकारी अफसरान की फ्री पेट्रोल और बिजली की मराद मुकम्मल खत्म करे, तभी पता चलेगा पेट्रोल और बिजली की कीमत से आवाम कितनी परेशान है। एक साथ आप 50 रुपए पर लीटर बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 330 का पेट्रोल खरीदने की सकत किस में है इस मुल्क के अंदर? या तो आप अपनी तमाम बेनिफिट्स ख़त्म कर दीजिए और जो आपको फ्री लीटर्स में पेट्रोल दिया जाता है वो ख़त्म करके आप भी ज़रा अपनी जेब से दीजिए, फिर मैं पूछूंगी कि ये लेवी लगती है या नहीं लगती है, क्योंकि नाउ दिस इज़ गेटिंग टू मच। माहिन सलमान ने कहा कि हुकूमत मसाइल का हल दे, ये ना कहें कि मजीद ये टैक्स लगा दो। पहले ही इंडस्ट्री बुलंद बिजली और गैस की कीमत पर बंद हो रही है, अब मजीद टैक्स का बोझ डाला तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। ओल्ड सिटी एरिया के ताजर ईद खरीदारी से मुतमईन। सदर नासिर मकानी का कहना है कि इस पर रमजान में कारोबार अच्छा हुआ है। मजीद जानते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। महंगाई है तो क्या हुआ, ईद की खरीदारी भी तो करनी है। ओल्ड सिटी एरिया की मार्केटों के ताजिर ईद सीजन से खुश। सदर नासिर मकानी का कहना है कि वालिदैन खुद के लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। महंगाई के बावजूद कारोबार अच्छा हुआ है। महंगाई है, माना कि महंगाई है। आदमी जहाँ 3 या 4 खरीदता था वहाँ बच्चों के लिए 2 ले लेता है, तो काम बेचारे लोगों के तो लेना है, महंगाई है। अब मर्द कहता है कि मैं अपने लिए ना लूँ, मेरे लिए नहीं है, मगर मेरे बच्चों के लिए तो लेना ही है ना। नासिर मकानी ने ओल्ड सिटी एरिया के बाजारों में सिक्योरिटी के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मगर इधर पुलिस का भी बहुत अच्छा निज़ाम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें, ये मार्केट लगती है मीठा दर को और बाहर फुटपाथ लगता है खारा दर को, दोनों ताउन करते हैं और हर वक्त ये खड़े हुए हैं, रात को ड्यूटियां भी दे रहे हैं। शहर की दीगर मार्केटों के मुकाबले में मोतनदास में खरीदार दिन के औकात में भी शॉपिंग करते दिखाई दिए। कैमरामैन शकील के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। शहर में पानी की कमी संगीन हो गई है। जिला कुरंगी अलावाला टाउन के मकीन बरसों से पानी की अदम फ्राहमी का शिकार हो गए हैं। कहते हैं पानी ना होने से शदीद मुश्किलात का सामना है।
तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान की इस रिपोर्ट में। हमारा पानी कहाँ जा रहा है? शहरी पानी की कमी पर सरापा एहतजाज। मलीर हो या शाह फैसल, औरंगी हो या कोरंगी, बल्दिया टाउन या नॉर्थ कराची, लांडी में पानी की किल्लत पर शहरी बिलबिला उठे। कराची के इलाके अल्लाहवाला टाउन के मकीन गुज़श्ता कई बरसों से पानी की अदम फरहमी का शिकार हैं। इलाके में पानी की फरहमी न होने के बाइस इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, पानी ले लेके टैंकर डलवा के सुजुकी डलवा के यही गुजारा कर रहे हैं। क्या या तो बोरिंग का पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको कंप्लेन करें, किसको करें कंप्लेन? वही इस्तेमाल करते हैं। अब बर्तन के लिए, घर धोने के लिए, इस्तेमाल के लिए तो अभी ये खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी यहाँ पर फिल्टर से ले लेते हैं या सुजुकी डलवा लेते हैं पकाने करने की। बोले ना 15-20 हज़ार रुपये पानी का खर्चा हो जाता महीने में। अल्लाहवाला टाउन के इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इलाके में जल्द अज जल्द पानी की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। मेयर कराची ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द को शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों से आगाह किया। मुलाकात में म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी भी मौजूद थे। इस पर मज़ीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी भी मौजूद थे। मेयर कराची ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द को शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों से भी आगाह किया है, जबकि उनकी जानिब से वर्ल्ड बैंक के वफ़द को शहर में पार्किंग प्लाजा और कम्युनिटी सेंटर बनाने की तजवीज़ भी दी गई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के मिशन को जारी व सारी रखेंगे। उनकी जानिब से इस अज़्म का भी अदा किया गया है। ठीक है, अहम अमूर पर बातचीत हुई है, ब्रीफ किया गया है। शुएब, बहुत शुक्रिया। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, हर गुजरते दिन के साथ मार्केटों में रश पड़ने लगा। शहरी ईद की खरीदारी में मगन हैं। मजीद अहवाल बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, हर गुजरते दिन के साथ ईद की तैयारियों में तेज़ी दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मार्केटों में शहरियों का रश बढ़ता जा रहा है और ख़रीदारी का सिलसिला जो है जारी है। महंगाई का शिकवा भी करते शहरी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईद की तैयारियां हैं उनको करने में कोई किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त जामा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद मार्केट में नज़र आ रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ रश भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इफ्तारी के फौरी बाद ही हमने देखा है कि शहरियों की यहाँ पे आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो ईद की तैयारियों में मगन भी हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। बताइएगा, कैसी चल रही है ईद की तैयारी? बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मैंने बच्चों की शॉपिंग तो मैंने कर ली है और यहाँ मैं फ़िलहाल अपनी शॉपिंग करने आई हूँ, क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी होती है यहाँ, मैंने सुना है। और बाकी अभी देखते हैं, मैं अभी इंटर हुई हूँ, क्या क्या लेते हैं, क्या क्या होता है। अच्छा, महंगाई से ईद की ख़रीदारी पे कोई असर पड़ा है? बहुत पड़ा है। मार्केट में जो है ना 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और हम जैसे लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है वो आगे मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकती है। और बच्चों की वैरायटी जहाँ देखी जाती है वहाँ तो बहुत हाई फाई जो है ना लेवल हो गया है। बच्चों की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये ईद की ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो ख़वातीन हो, बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो, तमाम की जानिब से जो है इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ रश बढ़ता जा रहा है मार्केटों में। मुख्तलिफ मार्केटों का हमने अहवाल देखा तो ये सिलसिला जो है 15 रमज़ान से जो है वो उसके बाद तेज़ी आई है ख़रीदारी के सिलसिले में, और अब भी शहरी वक्तन फ़वक्तन यहाँ का रुख कर रहे हैं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। जी, रमज़ान मेहरबान में आज का उन्वान अल्लाह के मेहमान एतकाफ़ के हवाले से अल्लामा अब्बास मेहदी तरावी और मज़ाहिर और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ रोशनी डाली। शेफ सरवत सईद ने मज़ेदार कोयला कढ़ाई, थाई फ्राइड प्रॉन्स और कस्टर्ड बनाना सिखाया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। सिटी 21 न्यूज़ की रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन का आगाज कारी अहमद मालकी की किरत से हुआ। मेज़बान याले सरहदी ने तर्जुमा पढ़कर सुनाया। और अगर मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे के साथ ज्यादती करे तो उस गिरोह से लड़ो जो ज्यादती कर रहा है। रमज़ान मेहरबान में नातिया मुकाबले जजेस के फ़राइज़ पाकिस्तान के मारूफ नातख्वां कारी असदुल हक और शकील मदनी साहब ने अंजाम दिए। आज के उन्वान इत्तकाफ़ पर अल्लामा अब्बास मेहदी तराबी और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। जो रिवायात है उसका खुलासा ये है कि इत्तकाफ़ रखने वाले को
2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। माशाल्लाह। सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह से लौ लगानी है, अल्लाह की जानिब बढ़ना है, और फिर इनाम में क्या मिला उनको? तौरात जैसी नेमत अता हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जारा जाहिद ने माह रमजान में प्राइस कंट्रोल करने के लिहाज से इंतजामिया की हिकमत अमली पर आगाह किया। प्राइस कंट्रोल इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। रमजान में इट्स प्रिटी एक्टिव, तो वो एक पॉलिसी है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव्स होती हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हमने स्टेट लैंड पब्लिक स्पेसेस जो इंक्रोच हुई हुई हैं उनको हमने फ्री करना है इंक्रोचमेंट से। रमजान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने कोयला कढ़ाई, थाई प्रॉन्स और कस्टर्ड बनाना सिखाया। ठीक है, उसके अलावा ये चिकन कोयला कढ़ाई है जी, और ये कस्टर्ड है और जेली है और क्रीम इसके ऊपर। अच्छा, ये ट्राइफल नहीं है, सिर्फ कस्टर्ड और जेली है। थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और खास करके जब आप इतनी बिल्कुल हेवी ड्यूटी स्पाइसेस वाली चीजें खाते हैं कि ज़बान जो है वो कुछ चीजें बगैर स्पाइसेस की अच्छी ही नहीं लगती। मुजद्दिद साबरी और हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दिया। माह सयाम में इबादत के साथ सेहतमंद मुकाबलों का भी एहतमाम हुआ। जी बिल्कुल, नौजवानों को फिट रखने के लिए मलीर में सजा फुटबॉल का मेला। इस हवाले से जावेद इकबाल की रिपोर्ट है। रमजान मुबारक में इबादत के साथ सेहतमंद रहने की सरगर्मियाँ, कहीं क्रिकेट के मैदान आबाद तो कहीं फुटबॉल का मेला। मलीर में मोहल्ला एक्शन मनशियात कमेटी के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। इवेंट में 32 टीमें शामिल हैं। पहले इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मनशियात एक्शन कमेटी की बुनियाद हमने रखी और वो मुस्बत साबित हुई। आज आप ये रौनक देख रहे हैं, ये सब मनशियात एक्शन कमेटी की मनोमिन्नत और एहलिया ने साबित गोट की। मैं ये नहीं कहता कि ये हमने किया है, हमने सब मिल के ये स्टैंड उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्बत साबित हुआ। मुंतज़मीन का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी मशगूल रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल के मेहमान मनफी सरगर्मियों से दूर रहें। मैं बच्चों के हवाले से बोलता हूँ कि जो ना हमारे यहाँ स्किल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको जो ना प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इनको प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे इलाके मकीन जो साहिब हैसियत हैं, ये अगर बच्चों को सही प्रोग्राम, सही मैसेज दें, सही प्रोग्राम प्रोवाइड करें, ये हमारे बच्चे आगे निकल के बहुत जो ना कौम के लिए बहुत अच्छा किरदार अपना अदा करेंगे। मुंतज़मीन ने बताया कि ग्राउंड ज़ेर तामीर है, ताहम नौजवानों को मसरूफ रखने के लिए इवेंट का इनेकाद किया गया। रात में सड़क पर जारी इस टूर्नामेंट में जहाँ बच्चों, जवान और बुजुर्गों को मसरूफ रखा, वहीं एक सवालिया निशान छोड़ दिया कि आखिर इन बच्चों के लिए हुकूमत कब अच्छे ग्राउंड मुहैया करेगी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।